स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ઓંકાર અને ગાયત્રીનો જપ, પ્રાણાયામ યોગનો તપ કરીને આપણે કોરોના અને કોરોનાના બધા જ કોમ્પ્લિકેશન્સને મટાડી શકીએ એના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અમારે સાથે છે. અને તમે ઘરે બેસીને જ ફક્ત ભસ્ત્રિકા આ 5 મિનિટ કરવાનો છે. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ, એના પછી કપાલભાતી, અનુલોમ વિલોમ ભ્રામરી ઉદ્ગીત. આ 5 પ્રાણાયામ તો મિનિમમ બધાને કરવાના છે. પછી રોગ પ્રમાણે 5 આસનો કરી લેજો. બાળકો છે શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન, ચક્રાસન, પશ્ચિમોત્તાનાસન. જેને કમરમાં દુખાવો છે એ ઉષ્ટ્રાસન, ભુજંગાસન, સર્ભાસન, ધનુરાસન, મર્કટાસન, અર્ધ પૌર્ણમુક્તાસન, જેનાથી જેટલો થાય 5-7 આસનો કરી લેવાના. જેને ઓબીસીટી છે સ્થિત કોણાસન, ચક્કીયાસન, ભુજંગાસન, અર્ધલાસન, પાદ વૃત્તાસન, દ્વિચક્રિકાસન. અને જેને કોઈ પણ રોગ છે એ મંડૂકાસનથી માંડીને મંડૂકાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન, પૌર્ણમુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, જેનાથી જેટલા થાય 5-7 આસનો દરેક બીમારીમાં કરી લેવાના. અને પોતપોતાની આવશ્યકતા પ્રમાણે, જેમ ધારો કે કોરોના અને કોરોનાના કોમ્પ્લિકેશન્સથી બચવાનો છે તો એલોવેરા, ગળો, તુલસી, નીમ, આ બધું જ્યુસ પી લેવાનું. ભૂખ્યા પેટે આ જ્યુસ કાઢીને અને આ જ્યુસ પી લેવાનું. ખાવામાં પીવામાં સાઉથમાં તમે રસમ અને ભાત ખાઓ, દાલ રોટી સબ્જી ખાઓ. એ નેચરલ ફૂડ બહુ જબરદસ્ત હોય છે. નેચરલ ફૂડથી ઇમ્યુનિટી વધે છે. નેચરલ ઓઇલથી સરસોનો તેલ હોય, કપાસિયાનું તેલ હોય, સિંગદાણાનું તેલ હોય, તલનું તેલ, નારિયેળનું તેલ, કોકોનટ ઓઇલ, જે નેચરલ ઓઇલ છે, ગાયનું ઘી છે, એ બધા નેચરલ પદાર્થ ખાવાના પીવાના. એનાથી ઇમ્યુનિટી વધે. કપાલભાતી, પછી અનુલોમ વિલોમ. નેચરલ ખાવાનું, નેચરલ લાઈફસ્ટાઈલ ફોલો કરવાનું. અને દરરોજ કપાલભાતી, અનુલોમ વિલોમ આ 10-10 મિનિટ આ પ્રાણાયામ બંને જરૂર કરવાનું. જેને બહુ જ વધારે રોગ હોય તો 30 મિનિટથી માંડીને 1-1 કલાક સુધી પણ પ્રાણાયામ કરી શકાય. અને બધું આ યોગાભ્યાસ એકાગ્રતા સાથે, ભક્તિ સાથે કરવાનો, શ્રદ્ધા સાથે કરવાનો. યોગ નિષ્ઠા મજબૂત હોવી જોઈએ. યોગ નિષ્ઠા, ગુરુ નિષ્ઠા, બ્રહ્મ નિષ્ઠા, ભાગવત નિષ્ઠા આપણી મજબૂત હોવી જોઈએ. અને એક નિષ્ઠા તત્વ તમારું મજબૂત હોય, જે ગુરુનિષ્ઠ હોય, જે બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય, જે યોગનિષ્ઠ હોય, એની સંબંધ નિષ્ઠા, માતૃ પિતૃ નિષ્ઠા, એની પરિવાર નિષ્ઠા, રાષ્ટ્ર નિષ્ઠા, કર્તવ્ય નિષ્ઠા ઓટોમેટિકલી સારી જ હોય. તો કપાલભાતી, અનુલોમ વિલોમ નિષ્ઠા સાથે કરવાનું. અને ભ્રામરી ઉદ્ગીત.
ભ્રામરી 5-7 બાર કરી લેવાનું. ઉદ્ગીત આવશ્યકતા પ્રમાણે શીતની શીતકારી, જેને બહુ જ હાઇપરટેન્શન હોય, એન્ઝાઇટી હોય, સ્ટ્રેસ હોય, મનમાં બહુ અશાંતિ હોય, તો શીતની શીતકારી જીવાને બહાર કાઢીને આ શીતલી અને આ શીતકારી પછી ચંદ્રભેદી, સૂર્યભેદી, નાડી શુદ્ધિ પોતપોતાની આવશ્યકતા પ્રમાણે. અને જેને ગળા થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ હોય, ટોન્સિલ કફની પ્રોબ્લેમ હોય, આમ તો આંખના ગળા માટે ત્રણેય માટે બહુ જ સારું હોય છે ઉજ્જાઈ. અને બ્રેથને હોલ્ડ કરીને જમણાને નાકને બંધ કરીને ડાબાથી શ્વાસને બહાર કાઢવાનું. આ 3 બાર ઓછામાં ઓછા તો બધા જ કરી લેજો. જેને પ્રોબ્લેમ હોય થાઇરોઇડની એ તો 11 બાર કરી લેજો. અને આ પોઈન્ટ દબાઈ લેજો. આ થાઇરોઇડનું પોઈન્ટ છે. આ થાઇરોઇડનું પોઈન્ટ છે. આ પેટનો, આ ગળાનો, પછી આ આંખનો, આ ફેફસાનો, આ કાનનો, આ હાર્ટનો, પછી આ ડાયાબિટીસનો, આંતરડાનો, આ પાઇલ્સનો અને આ ઇન્ફર્ટિલિટીના પોઈન્ટ છે. અને આ બધા સ્ટ્રેસ અને સાઇનસના પોઈન્ટ છે. અને પાછળથી 1 2 3 4 5 6 7 આ જે 7 ચેનલો છે, આ બધા અહીંયાથી અને આ બધા આ દર્દના પોઈન્ટો છે. જેને જેવી આવશ્યકતા હોય એવા પોઈન્ટો પણ દબાઈ લેવાના. અને યોગાભ્યાસમાં આસનની સાથે સાથે પ્રાણાયામને વિશેષ બળ આપવાનું. અમે આ કરાવીને મોટા મોટા અસાધ્ય રોગો, જેનેટિક ડિઝીઝ, ઇન્કેરેબલ ડિઝીઝ અને ડિઝીઝના કોમ્પ્લિકેશન્સ, કોરોનાના કોમ્પ્લિકેશન્સ, લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ, જેનેટિક ડિઝીઝ, ઇન્કેરેબલ ડિઝીઝ અમે સારી કરી છે. તો આ યોગાભ્યાસ સાથે યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, નેચરોપેથી અને વિભિન્ન પ્રોસિજર્સ, થેરાપીઝ અડોપ્ટ કરીને અમે મોટા રોગોને મટાડ્યા છે. એટલે મારું એક જ આહ્વાન, દરરોજ આ યોગાભ્યાસ કરવાનો, જે આપણી ટ્રેડિશનલ લાઈફસ્ટાઈલ છે એને ફોલો કરવાનો. જરૂર પડે તો ટ્રેડિશનલ મેડિસિન, હોમ રેમેડી, સિંગલ ડ્રગ્સ, એક ઔષધિમાં અપાર શક્તિ છે. એક ગળો, તુલસી, હળદર જેવી જેને જેવી આવશ્યકતા, વાત, પિત્ત, કફ, પ્રકૃતિ પ્રમાણે એ ઔષધિ લઈ લેવાની. અને રોગ વધારે થઈ જાય તો એના માટે અમે પેટેન્ટ મેડિસિન્સ, હવે ધારો કે કોઈને પેટની એવી પ્રોબ્લેમ થયો તો સર્વકલ્પ, કાયકલ્પ, ભૂકે પેટે લઈ લેવાનું. અને 90% સુધી લીવર ખરાબ થઈ ગયું છે તો લીવામૃત એડવાન્સ ખાધા પછી 2 ટીકડી અને લીવોગ્રીટ એ ભૂખ્યા પેટે એક ટીકડીથી શરૂ કરીને 2 ટીકડી સવારે, બપોરે, સાંજે 3 ટાઈમ લઈ શકાય. એમ જ રિસર્ચ બેઝ મેડિસિન બીપી વિગ્રીટ અને મુક્તાવટી બીપી માટે, મધુનાશિની મધુગ્રીટ શુગર માટે, પ્રોસ્ટોગ્રીટ પ્રોસ્ટેટ માટે, થાઇરોગ્રીટ થાઇરોઇડ માટે, અને ઓર્થોગ્રીટ અને પેડાનિલ આર્થરાઇટિસ માટે, શ્વાસારી ગોલ્ડ અને શ્વાસારી બટી એ અસ્થમા માટે. દરેક રોગની આપણે ઔષધ બનાવી છે. એનું પ્રયોજન એ છે
કે લોગ રોગોથી મુક્ત થાય. ચારે બાજુ જે રોગ વધી રહ્યા છે એને જોઈને ઘણીવાર તો આમ થાય કે આગળ દુનિયા કેમ ચાલશે, આટલા બધા રોગો થઈ ગયા છે. તો વાત પિત્ત કફ પોતપોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે યોગ યજ્ઞ આયુર્વેદ નેચરોપેથી અને થેરાપીઝને ફોલો કરજો. આહાર વિચાર વાણી વ્યવહાર સંયમમાં સંયમ રાખજો તો તમને કોઈ રોગ કોઈ વ્યાધિ કોઈ મનની અશાંતિ તમ ટકે નહીં. તો આ યોગ કરતાં કરતાં આ ભાઈઓ શું લાભ પામ્યું છે એનાથી પછી તમને પણ પ્રેરણા મળે અને અમે આ બધું કર્યું છે. તો આ ભાઈ તો हमारा सबसे नाना विश्व क्या नाम बेटा? अमन गर्ग. कहाँ से आए हो? हिंडौन सिटी राजस्थान. ओ हिंडौन सिटी में तो हाँ पापा जी आपसे जुड़े हुए मंजू बहन है ना आपकी, हाँ. वो मेरी बड़ी ताई जी है. अच्छा शुरू से अच्छा. आपसे जुड़े. मेरा जन्म नहीं हुआ था तब आप घर आते थे. इसका जन्म नहीं हुआ था तब मैं इनके हिंडौन में जाता था. अब ये बच्चा बड़ा होकर के मेरे पास आया है और हमने इन बच्चों को इनके माता पिता को भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कुछ आसन और योग के साथ यज्ञ भी सिखाया है. तुम्हारी मंजू जो है ताई जी रोज यज्ञ करती है. रोज करती योग यज्ञ आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च एंड एविडेंस मेडिसिन अलग अलग प्रकार के थेरापीज इनको फॉलो करके हमने रोगों को मिटाया. उसका एक प्रमाण तो यही है. क्या क्या मिटाया बेटा? कोरोना से हुए सारे कॉम्प्लिकेशन में बीपी, हेयर फॉल और चश्मा हटा दिया मैंने. मेरा डॉक्टर जो था पहले थोड़ा चश्मा लगा फिर बढ़ गया नंबर. फिर 1 महीने में ही मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया तो नंबर घट गया. डॉक्टर बोला मेरी दवाई सही ली. मैंने कहा नहीं दवाई तो सारी रखी है घर पे ले आऊँ. मैंने क्या किया, मैंने योग किया और वो आई ग्रेड बटी ली सबसे बढ़िया और 1 महीने के अंदर चश्मा हटा दिया. क्या बात है, तो जोरदार लड़का. और बाल भी अभी थोड़े कम झड़ रहे हैं. हाँ बहुत कम झड़ रहे हैं बाल. पहले वो ये कोरोना में किसी किसी के तो पूरा गंजे हो जाते हैं. तो बाल खरे ये पण रुके. आई साइड ऐसा कर लिया. आई साइड और बीपी का कितना बढ़ गया था? 180. 3 दिन लगातार रहा था 180. डॉक्टर्स भी ला पाए तो गोलियों से 145 तक ही ला पाए. 145 से नीचे कैसे आया? नीचे प्राणायाम से और बीपी ग्रेड बटी ली उससे. बीपी ग्रेड कितनी खाई? बीपी ग्रेड एक सुबह शाम बस. बस 2 खा लेता तो एक ही दिन में ठीक हो जाता. बीपी ग्रेड खाली एक ही खाई. और वो लौकी का जूस याद नहीं रहा? लौकी का जूस नहीं लिया क्योंकि है ना बाबा जी कोलाइटिस हो गई. हाँ कोलाइटिस और कबाड़ा. वहाँ वो पेट का क्या हाल है? पेट बिल्कुल सही है. आप बिल्कुल ये तो भूल ही गया था क्या क्या हुआ था. कोरोना तबाही मचा के जाता है. बाल, आँख, कान, जबड़ा, नाक, फेफड़ा, हार्ट, पेट, इम्यूनिटी. कोरोना से मेरे 2 मिनट का रास्ता चलने में 5 मिनट लग जाता. इतना मेरा शरीर कमजोर हो गया था. और उम्र कितनी? उम्र 21 साल. हेलो 21 साल में ऐसे ने तो अमृत पी लिया. छोड़ना नहीं बेटा. क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीए सेकंड. ठीक है. अपनी मंजू ताई को मेरा आशीर्वाद कहना. और ये तो हमारे योगी हैं जो है हमारे बंसीलाल जी. एक बार जोरदार इनका बहुत बहुत अभिनंदन. मुझे महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन. यहाँ उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम. मैंने पूरा परिवार हमारा कोरोना ग्रस्त हो चुका था. हमने मेरे बेटे ने एलोपैथिक औषधियाँ ली तो उसको 12 दिन लगे लेकिन अंत में उसको फिर हमें कोरोनिल ही देना पड़ी. अच्छा फिर भी काबू में नहीं आया. मेरी वाइफ पीछे बैठे हैं. इनको 20 साल से डायबिटीज़ है. पार्किंस है. शैटिका पेन है. किडनी के 4 ऑपरेशन हुए हैं. ब्रेस्ट सीए हुआ था. ब्रेस्ट रिमूव है. जिस सारी दी है. फिर भी कोरोना हो गया. फिर भी कोरोना हो गया. ऐसे तो लोगों के मरने के सिवा कोई. दोनों इधर है तू. इधर आ. ये बच गई भाई. इसके लिए जोरदार ताली बजा दो. इतनी बीमारी हो फिर बच जाए तो इससे बड़ा और योग का चमत्कार क्या हो सकता है. माने ब्रेस्ट कैंसर, पार्किंसंस, डायबिटीज और सब शरीर में गड़बड़ी और बच गई. तो कितने दिन में ठीक हुई? ये 3 दिन में ठीक हो गई. अच्छा. मैं तो सिर्फ 2 दिन मेरी कक्षा नहीं चल पाई. मैं ठीक हो गया
उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हुई, और कॉम्प्लिकेशन में एक दिन हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने गैस वाला इंजेक्शन लगाया तो वापस आ गए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर अपनी कोरोनिल और फिर स्वासाहारी ली, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी कम हो रही थी, तो स्वासाहारी से ठीक हो गई। विटामिन डी, क्योंकि अपनी थी नहीं उस वक्त, तो विटामिन डी की गोली देना पड़ी, धूप में बैठाना पड़ा। तो विटामिन डी की अभी न्यूट्रेला, विटामिन डी, B12, ओमेगा, बोन हेल्थ, आयरन कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन डेली एक्टिव, और ये बी कॉम्प्लेक्स डेली एनर्जी, ये सब भी अब जो है ये न्यूट्रेला के, पतंजलि न्यूट्रेला के नाम से आ गई हैं, और ये माता मरने से बच गई हैं। कितनी उम्र है अम्मा? और अब शुगर क्या हाल है तेरा? शुगर अब तो ठीक है। आज 114। 114? क्या बात है। और वो हाथ हिलता था वो? हाँ जी। हाथ सामने करो, दोनों हाथ करो। चलो ये भी हिलना और कम हो जाएगा। हाँ? ठीक है। डेली करना है ना, तो ये तो बच गई। हाँ? चलो उधर आ जाओ, अनुलोम विलोम करो सब। ओम ओम। ओम। बाबा जी आपको प्रणाम है। मेरा नाम है रामा मोहन राव, मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा, मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया, उस टाइम पे मैंने प्राणायाम किया और सूर्य नमस्कार किया, उससे 5 दिन मेरा कम हो गया। मेरा उसके बाद में मेरा बीपी और शुगर बढ़ गया था। वो मेरा व्यक्ति हाँ, एलोपैथी ये भी कोरोना का कॉम्प्लिकेशन, બહુ મોટો કોમ્પ્લિકેશન છે, અને ઘણા બધાની તો મોત કોરોના થયા પછી નેગેટિવ આવી ગયા। બીપી વધવાથી, સુગર વધવાથી, લંગ ફેલિયરથી, હાર્ટ ફેલિયરથી, બ્રેન ફેલિયરથી, નર્વસ સિસ્ટમ ફેલિયરથી પૂરી બોડીનો સિસ્ટમ કોલેપ્સ થઈ જાય, એનાથી મોત થઈ રહી છે। ફરી क्या किया फिर? अभी एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करने के लिए मेरा वाइफ तो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एलोपैथी में काम करती है। वो बोली थी मेडिकल ला के दे दिया। मैंने बोला था नहीं, मेरे को ये एलोपैथी यूज़ करने का नहीं है, उससे साइड इफ़ेक्ट्स होती है बहुत सारे, इसलिए मेरे को मालूम था उसके बारे में। इसलिए मैंने बाबा जी के पास आके ये प्राणायाम और ये आसा योगा से और मधुवाटी जो लिवर ग्रिड है लिवर के लिए, उससे ठीक करवाने के लिए आया था। और विटामिन डी, B12 भी ले लिया, सब घर वाले के भी ले लिया मैंने। अच्छा, अभी बीपी शुगर कैसा है? कम हो गया। हाँ? बीपी अब तो नॉर्मल आ गया। एलोपैथी दवा? नो, ये इसमें से मधुनाशिनी, मधुग्रीट। मधुग्रीट और बीपी के लिए बीपी ग्रीट और मुक्तावटी कुछ लिया? बीपी ग्रेड लिया, मुक्तावटी लिया, मुक्तावटी लिया, अब पूरा ठीक हो गया? पूरा ठीक हो गया। चलो, बीपी शुगर, ये हमारे राव साहब जो है ये आंध्र प्रदेश से हैं, हैदराबाद से। हैदराबाद से। हाँ, मेरा नाम शांतनु मिश्रा है, मैं बस्ती यूपी अनुलोम विलोम अयोध्या के पास से आया हूँ। हाँ। और मुझे अप्रैल में कोरोना हो गया था, और मेरी पत्नी वर्षों से, पिछले साल से ही योगा करनी, जब योगा पिछले साल कोरोना शुरू हुआ मैं नहीं करता था तो मुझे कोरोना हो गया। वो मेरी सतत सेवा में रही, मुझे हाँ। लगातार मेरे पूरी बॉडी में दर्द होता था, वो मेरी सेवा करती रही और उसे नहीं हुआ। अच्छा, मेरे उसको नहीं हुआ? दिमाग क्यों नहीं में हुआ? आया, उसे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 1 वर्ष से आपको जो है योगा कर रही है, और उसको वो आपसे मिली भी थी अभी पिछले दिनों, यहीं पे आई भी है साथ में, और उसका ब्रोंकाइटिस था वो दूर हो गया। खून आते थे, नहीं तो- मतलब नाक और नहीं तो- मुंह से खून आता था। ओहो, और मैं ऐसे तो लोगों एकदम को डर गया। तो कोरोना हो जाए तो मर जाए। डॉक्टर ने बहुत ही ऐसी बात कह दी कि या प्रेग्नेंट थी वो, कि या तो बच्चा बचेगा या तो तुम्हारा खून 9 महीने आता रहेगा। तो फिर वो गलत फैसला लेना पड़ा, लेकिन जीवन आज आपके साथ से, आपके सानिध्य में उन्होंने किया, और उनकी इम्यूनिटी ने मुझे मजबूर किया कि अब मुझे भी अपने शरीर को मजबूत करना है, अच्छा करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ हमारे ऊपर ना आ पाए। अब पत्नी ने प्रेरित किया और इसने देखा कि ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरी सब सेवा कर रही है, सुबह से शाम तक मेरे पास रहती है, उसको कोरोना नहीं हो रहा, मैं कोरोना में और तड़फ रहा हूँ। जो खांसी आ रही थी उसके लिए पत्नी ने ही श्वासारी दिया, और ज्वर नाशक के जो बुखार बढ़ा हुआ था उसके लिए ज्वर नाशक भी। पिलाया। तो मतलब इतना सब प्रत्यक्ष उदाहरण, मतलब जीवंत अपने नजदीक इतने महसूस करने वाली चीज, तभी से मैं ढूंढ रहा था कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिले। वो बुकिंग ही नहीं मिल रही थी, अंत में टेंट कुटिया ही मिल गई। मैंने कहा चलो यहीं चलते हैं, कितनी देर सोना ही है, कभी तो हाँ, शाम को 6 घंटा सोना, बाकी तो दिन भर यहाँ बाकी मस्त तो दिन भर रहना। इधर करना है। और मुझे लगता है कि ऑसम
जीवन में सब खर्चा बहुत सारा करता है, यहाँ जरूर आइए, एक बार अपने स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। सारे लोग इंटायर पूरी व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त अनुशासित। मनुष्य सबसे बड़ी बात है अपने घरों में सारी सुविधा होते हुए भी अनुशासित नहीं रह पाता, और यहाँ आप अनुशासन के अलग नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ी बात। तो अब लग गया कि अब योग करना ही है। अब तो योग जीवन में छूटेगा ही नहीं, जीवन ही छूटेगा, योग नहीं छूटेगा। क्या बात है। मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी से। मेरा नाम सुनील शर्मा है। क्या हाल है शर्मा जी? अभी तो यहाँ आके ठीक है स्वामी। तो क्या हो गया था? एक बार मेरे को हार्ट में 50 से 60% नस सिकुड़न हो गई। ओह, मैं दांता में एंजियोग्राफी करवाई थी, और मेरे पिताजी का ओपनर सर्जरी हुआ 2014 में। मेरी मम्मी को 2018 में 2 स्टंट लगे। स्वामी जी मेरे को लगा मेरे को भी शायद स्टंट लगेंगे या ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने आपको एक बार टीवी पर देखा, आप बोल रहे थे कि अब तो आगे हृदय की रिपेयरिंग भी हम ही करेंगे। स्वामी जी मेरा 60% 50% पे आ गया, इतना एकदम कॉन्फिडेंस हो गया मेरे अंदर, और मेरे को लगा कि अब शायद। अब तेरा हार्ट का क्या है? अभी तो 2 महीने पहले एंजियोग्राफी करा तो 50% हो गया। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी 3 दिन से यहाँ आके बिल्कुल ठीक। 3 ही दिन में? 3 दिन में मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे को कुछ अब रिवर्स गियर लग गया। अब लग गया है। ये हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे, बस 2 महीना संयम कर लेना खाने पीने में। अभी आपने बोला था लौकी कल्प पे, लौकी कल्प और उबली हुई सब्जी, बस। लेकिन थोड़ा भूख ज्यादा लगता है स्वामी जी कुछ खाने को। भूख ज्यादा खाने के लिए मांग रहा है। वहाँ पे शाम को पंडित जी 8 रोटी खा के सोता था, 8 रोटी खाता था। और यहाँ भी अरे पंडित होने तो कभी कभी भंडारा भी मिल जावे। भंडारा भी मिलता है स्वामी जी वो तो। और याद है पूरा छिक्का ला रखा है इसमें। टिक्का लगा दिया स्वामी जी, इतनी सब्जी देते हैं बस। क्या होता है उससे? तभी तो भीतर का पिघलेगा जो पहाड़ जमा रखा है। अभी हो ये कम खाने से, उपवास से जो अंदर की गंदगी है ना, ब्लॉकेज हैं और टॉक्सिन्स हैं, निकलते हैं। इसलिए थोड़ा तसल्ली कर ले, नहीं, वो बाद तो में पूरा फिर। करो, बाद में बोला बिल्कुल। हाँ, और मेरे को अरे कोरोना भी हुआ था तेरे को? कोरोना हुआ, मैं कहीं डॉक्टर के पास नहीं गया। मेरा भाई है बड़ा, उन्होंने कोरोनिल किट पूरा मंगवाया, 6 पीस। 3 दिन में बिल्कुल मैं ठीक हो गया। और अब मैं हमारे घर में 2 बच्चे हैं, जुकाम होता है तो सब सारे पीस के शहद में मिला के चटा देता हूँ। रेडी ठीक यार। अब तो पूरा घर प्राणायाम करता है, और कार्डियोग्रेट ये बस तेरे को भी 800 साल तक तो होगा नहीं, और उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, इसको देना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं रुचि सोया के शहर से आपने हजारों सैकड़ों कर्मचारियों को बचा लिया, उनकी रोजी रोटी वापस दिलवा दी। और इंदौर रुचि से सोया को एक बार कर लिया पतंजलि ने, तो वो भी तर गई, नहीं तो मर गई थी वो भी। मेरे को, मेरे बच्चे को, बेटी को, मेरे साले को कोरोना हो गया था, और उस समय इंदौर में ऐसा लग रहा था कि वो जैसे टेस्ट करवाओ, और अस्पतालों में जगह नहीं तो फिर भी लेके जाते थे और कहीं भी डाल देते थे। बहुत डेथ भी हो रही थी, इंदौर का काफ़ी उस समय चल रहा था। तो हम वाइफ इतनी डरी हुई थी, तो हमने घर पे ही कोरोनिल के किट मंगवाए। कोरोनिल सभी ने लिए, और गिलोय, एलोवेरा, ये सब मतलब जो आपके सारे रख के रखते हैं। योगा करा, हर 10-10 मिनट कर पाते थे, ज़्यादा एक साथ नहीं कर पाते थे, दिन में 3-4 बार करे, तो उससे काफ़ी राहत मिली। और 3 दिन में ही मतलब बुखार उतर गया। और स्वामी जी मैं लगातार पिछले साल से आपको आस्था पे देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। और हम चारों आए हैं, वाइफ, दोनों बेटा 22 साल का है, बेटी 25 साल की है, सब चारों आए हैं। और आपकी शरण में अब जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, ये कि अस्पतालों में पैसा नहीं देना है, योग और बाबा जी की शरण में आके स्वस्थ रहना है। स्वामी जी ओम, हमने सोचा कि कोरोनिल किट घर पे लाके रख लेते हैं, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब हो रहा था। तो जिस दिन हमने लाके रखी, अगले ही दिन मुझे बुखार हो गया। तो मैंने तब से खानी स्टार्ट कर दी। हाँ। तो किसी ने लिस्ट दी एलोपैथिक दवाइयों की, हाँ। कि आइवरमेक्टिन ये वो की मंगा के रख लो। तो हमने वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। तो जब तक वो ऑनलाइन ऑर्डर आया, तब तक उससे पहले मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। तो एलोपैथी के आने से पहले तो नेगेटिव आ गई, हाँ जी। और ये कोरोना आने से पहले कोरोनिल आ गई घर में। हाँ जी। तो बच गई। क्या नाम बेटा? गुंजन राठौर। गुंजन राठौर। तो और हस्बैंड ने 2 दिन में 4.5 किलो वजन कम कर लिया। तो वो तो और खुश होगा। हाँ जी। हेलो, तो योग थी
આ બધા રોગો મટાડીને અહીંયા બેસ્યા છે તો દરરોજ અમે બધા એક્ઝામ્પલ આપીએ છીએ કે ભાઈ તમે પણ કરો અને જે કરશે એને કોઈ રોગ નહીં નડશે. એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને કોરોનાથી માંડીને કોરોનાના જે કોમ્પ્લિકેશન્સ છે એનાથી મુક્ત થઈને રોગ મુક્ત અને યોગ યુક્ત થઈને એક દિવ્ય જીવન જીવવાનો અભ્યાસ મારી સાથે રોજ કરજો.